Good afternoon. Welcome back to another class of blood grouping. So in the last class, I guess it was in the last class we spoke about the basis of blood grouping. We spoke about blood group A, B, O and AB. इसकी genetics हमने बात किया था. I hope everyone has solved the questions and it is pretty easy to get the question get the answer for these questions. ठीक है? So we spoke about the genetic factor with respect to the blood groupings. So continuing with the part which we left was we already have a prerequisite information जो हम लोगों को already पता है, that is blood group cross transfusion prevent करने के लिए बॉडी के पास क्या mechanism है antigen antibody complexes का. ठीक है? So for example when I say if a person's blood group is A, so his antigen on the surface of the sorry my mistake, his antigen on the surface of the RBC is A, type A, and his plasma will contain type B, that is antibody B. In other words antibody against B antigen. So इसीलिए मैं इसको small letter में indicate करता हूँ. ठीक है? So that is why we spoke about the entire principle of cross transfusion. Why can't we give a B blood group to A blood group or A blood group to B blood group? ठीक है? And similarly on that particular context O blood group को हमने बात किया था that it is the universal donor, specifically which is the universal donor. Universal donor कौन सा है बेटा? O negative is the universal donor because it is not having any type of antigen except for antigen H. Whereas A positive is the universal acceptor. ठीक है? A positive my mistake. A positive अगर मैंने बोला तो my mistake गलती से मुंह से निकल गया. AB positive is the universal recipient. उसको universal recipient क्यों बोला बेटा? Because AB positive में अगर आप देखोगे तो सारे के सारे एंटीजेंस है. A भी है उसके पास, B भी है, H भी है और D एंटीजन भी है, इसीलिए so there is no scope of no more extra antigens to be added. Is that very clear? So that is the principle with respect to AB blood group. Also shows you the genetic basis, that is codominance. ठीक है? So continuing from that particular section, we will quickly do a small exercise with respect to identification of the blood groups. ठीक है? Identification of the blood group कर लेंगे, उसके बाद we will take up another topic, that is RH factor. यहाँ पे we will discuss what is the dire consequences. ठीक है? RH factor और that is RH factor और your antibody D. ठीक है? अब आइडेंटिफिकेशन बात कर लेते हैं. So if you would have been in my regular classes तो मे भी अपना आइडेंटिफिकेशन मैं आपको प्रैक्टिकली करके बताता, but nevertheless we do not have that scope in the video lectures, so we'll have to understand the principle only. ठीक है? So for identification conventionally अभी तो हमारे पास मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज है ना? सस्पेंशंस पूरी बॉटल्स मिलती है A ब्लड ग्रुप की, A आइडेंटिफिकेशन के लिए, B के लिए और D के लिए. ठीक है? So एंटीबॉडीज आर रेडीमेड अवेलेबल. अभी के लिए एंटीबॉडीज आर रेडीमेड अवेलेबल. ठीक है? बट अगर आप कन्वेंशनल मेथड में बात करेंगे, बिकॉज़ ये सब बुक्स तब के प्रिंटेड है ना, तो कन्वेंशनल मेथड में अगर आप देखोगे जब मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज, व्हेन आई से मोनोक्लोनल, मोनो मतलब सेम, क्लोनल मतलब क्लोन्स, एक ही टाइप के एंटीबॉडी के क्लोन्स होंगे. ठीक है? मतलब एक ही सस्पेंशन में अगर आप ब्लड का सैंपल निकालोगे तो ब्लड के सैंपल में आपको बहुत सारे एंटीबॉडीज मिलेंगे, राइट? आउट ऑफ विच आई ओनली हैव टू चूज the antibody against the blood group antigen. करेक्ट? तो अब मेरे को सिर्फ एंटीजन कंटेनिंग, एंटीबॉडी कंटेनिंग ब्लड ग्रुप एंटीजेंस एक्टिंग अगेंस्ट ब्लड ग्रुप एंटीजेंस चाहिए. तो नाउ आई हैव अ टेक्नोलॉजी वेयर आई कैन आर्टिफिशियली सिंथेसाइज दोज एंटीबॉडीज. बट जब तब टेक्नोलॉजी नहीं था, सो दे यूज्ड अ प्रिंसिपल. तभी भी ब्लड ग्रुप आइडेंटिफिकेशन करते थे तब के, मतलब 90s 80s 1980s में, 1970s में भी ब्लड ट्रांसफ्यूजन होता था, ट्रांसप्लांट होता था, है ना? सो दे प्राइमरीली रिक्वायर्ड ब्लड ग्रुपिंग टू बी डन. ठीक है बेटा? सो प्रिसाइजली व्हेन यू टॉक अबाउट द कन्वेंशनल मेथड, when you talk about the conventional method, conventional मतलब old traditional method, in the conventional method they used anti-sera.
Anti-sera. Now what is anti-sera? Anti here comes from the word antibody. Serum का मतलब है सीरम. तो ऐसा सीरम, so anti-sera is the serum containing antibodies. कॉमन सेंस है बेटा. सीरम में एंटीबॉडी बिल्कुल होंगे. सीरम में क्या नहीं होता? सीरम में सिर्फ प्लाज्मा प्रोटीन, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन्स, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ योर क्लॉटिंग फैक्टर्स आर नॉट प्रेजेंट बिकॉज़ सीरम में ऑलरेडी ब्लड क्लॉट हो चुका है. ठीक है. बट अगर उस पेशेंट को कोई टाइप की इंफेक्शन है, लेट्स से फॉर एग्जांपल, तो इन्फेक्शन के अगेंस्ट एंटीबॉडी प्रोड्यूस हो रही है and that will be present in the serum. Similarly here also what do we do is here when you talk about the serum will definitely contain, अगर एक इंसान का ब्लड ग्रुप A है तो उसके सीरे में definitely there will be traces of antibody B and that is what we are looking for. ठीक है. So what they used anti-sera. In other words, सीरम का मतलब है सीरम containing antibody, तो हमने अलग नाम दे दिया anti-serum. ठीक है. अब what was their principle? What do they used to do is, अब let's say for example, अगर anti-sera A है तो उसमें क्या एंटीबॉडी होगा? A एंटीबॉडी होगा. अगर anti-sera B है तो उसमें कौन सा एंटीबॉडी होगा? B एंटीबॉडी होगा. अगर anti-sera O है, that means technically there will be no antibodies in that particular serum. ठीक है. नो एंटीबॉडीज. एंटी-सीरा डी अगर है, एंटी-सीरा डी तो तब के टाइम पे लोग आइडेंटिफाई नहीं कर सकते थे बिकॉज रीसस फैक्टर वाज रिसेंटली एडेड टू दिस पर्टिकुलर प्रिंसिपल. ठीक है. तो एंटी-सीरा डी का कॉन्सेप्ट हम नहीं पढ़ने वाले हैं. हम लोग एंटी-सीरा ए बी, एंटी-सीरा बी एंड एंटी-सीरा ओ के बारे में बात करेंगे. ठीक है. सो यू अंडरस्टूड द प्रिंसिपल ऑफ एंटी-सीरा. नाउ वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड. जहां पे एंटीबॉडी है वो आइडेंटिफाई करेगा किसको? एंटीजन को. और एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बनाएगा. अगर एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बनाएगा सो द ड्रॉप ऑफ ब्लड व्हिच इज टेकन एज द सैंपल, पहले क्या करते हैं वो दे विल प्रिक योर फिंगर एंड दे विल टेक अ ड्रॉप ऑफ ब्लड ऑन द स्लाइड. कूल. तो अगर स्लाइड में फिर वो क्या डालते हैं? एंटी-सीरा. ड्रॉप बाय ड्रॉप एंटी-सीरा डालेंगे. इफ देयर इज एन एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन, प्लीज अंडरस्टैंड दिस, इफ देयर इज एन एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन, ठीक है, द आरबीसीज गेट क्लम्प्ड, है ना. आरबीसी जो ब्लड में आरबीसी जो है, आरबीसी सब एक साइड में चिपक जाएंगे एंड लीडिंग टू अ फॉर्मेशन ऑफ अ क्लम्प. सो इन एन एंटायर होल ब्लड आपको पूरा का पूरा क्लियर ब्लड नहीं दिखेगा, आपको एक क्लम्पिंग दिखेगा एट वन पर्टिकुलर कॉर्नर एंड दैट इज द इंडिकेशन. ठीक है. तो फॉर एग्जांपल व्हेन यू टॉक अबाउट, यहां पे ले लेते हैं अनट्रीटेड ब्लड. अनट्रीटेड ब्लड यहां पे है हमारे पास एंटी-सीरा ए and anti-sera B. ठीक है. So now what we are doing is, and then we try and identify the blood group of that individual. ठीक है. अब हम क्या करेंगे? We'll take up the whole blood. We'll take up the whole blood in this particular section. और फिर हम यहाँ पे उसको एक्सरसाइज करेंगे. मतलब टेक्निकली वी विल ट्रीट दिस ब्लड विद रिस्पेक्ट टू द सब्सिक्वेंट एंटी-सीरा एंड देन वी ट्राई टू आइडेंटिफाई द ब्लड ग्रुप एंड वी विल राइट इट हियर. ठीक है. तो अब मेरे पास 4 ब्लड ग्रुप्स है तो चारों को आइडेंटिफाई करेंगे. आरएच फैक्टर हम यहाँ पे आइडेंटिफाई नहीं करेंगे, आरएच फैक्टर हम लेटर आइडेंटिफाई करेंगे. बेटा समझिए क्या बेटा? ठीक है. सो विल टेक अप अनट्रीटेड ब्लड, सैंपल नंबर 1, सैंपल नंबर 2, सैंपल नंबर 3 एंड सैंपल नंबर 4. कूल. ठीक है. अब ये सैंपल नंबर 1 में अनट्रीटेड ब्लड जो है, आई एम इंडिकेटिंग विद रिस्पेक्ट टू दिस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर. दिस इज मीनिंग अनट्रीटेड ब्लड, होल ब्लड जो कंप्लीटली आपको लाल दिखेगा. ठीक है. देयर इज एब्सोल्युटली नो क्लम्पिंग ऑन दैट पर्टिकुलर पॉइंट. अब व्हाट डू यू सी हियर? व्हाट डू यू सी इज when you treat it with anti-sera A, here, so what you get is a clumping here. ऐसे if you treat it with anti-sera A and if you get clumping, मतलब all the RBCs get concentrated and they stick to each other, leading to a clear background. ठीक है. अगर आपको क्लम्पिंग दिख रहा है, कॉमन सेंस लगाओ बेटा. एंटी-सीरा ए में क्या है? एंटी-सीरा ए कंटेन्स A एंटीबॉडी, एंटी-सीरा B कंटेन्स B एंटीबॉडी.
ठीक है, मेरे को इस इंसान का ब्लड ग्रुप आइडेंटिफाई करना है. आई डोंट नो व्हाट इज द ब्लड ग्रुप ऑफ दिस इंडिविजुअल. ठीक है, बट व्हेन आई add anti-sera A, that means I am adding antibody A, and antibody A will identify what? Antibody A will identify antigen A, है ना. antibody A will identify antigen A. अगर इसमें मतलब घूम फिर कर बात यह है, यहाँ पे क्लम्पिंग दिखा, इसका मतलब इसके ब्लड में एंटीजन A था. Is that right? And externally when you add antibody A, it showed clumping. So this is an indication कि इसका blood group क्या होगा? इसका blood group होगा A. समझा बेटा? Similarly, let's treat it with anti-sera B now. ठीक है, अब ये तो मेरे को आइडेंटिफाई कर गया, बट एंटी-सीरा B से ट्रीट करेंगे तो क्या इफेक्ट आएगा? Let's try and understand. There will be no effect. Technically, when you say when you are treating with anti-sera B, अरे इसके ब्लड में ऑलरेडी एंटी-सीरा B होगा ना. समझ में आ रहा है? एंटी-सीरा B ऑलरेडी होगा बिकॉज इसका ब्लड ग्रुप आइडेंटिफाई हो चुका है दैट इट इज ब्लड ग्रुप A. सो अगर ब्लड ग्रुप A है तो ब्लड में एंटीजन दैट इज आरबीसी के ऊपर एंटीजन A होना चाहिए और एंटीबॉडी B होना चाहिए. सो एंड इन दिस पर्टिकुलर केस व्हाट विल हैपन? एंटीबॉडी और एंटीबॉडी कभी बाइंड नहीं होते. इज दैट राइट? दो चाबी कभी एक मिलकर ताला नहीं खोलेंगे. राइट? सो ऑलवेज देयर इज अ antibody which is binding to an antigen. So here the blood will be absolutely appearing clear just like an untreated blood. कुछ भी फर्क नहीं पड़ने वाला है. समझी क्या बेटा? आ रहा तो इधर भी कर लेते हैं just to show the uniformity. समझा बेटा? तो अगर एंटी-सीरा A डालकर क्लम्पिंग आ रहा है that means clear indication that what did this antibody bind on? It bound on the it binded on the anti-sera, it binded on the antigen A. ठीक है, अब डेफिनेटली इसके ब्लड में एंटीजन A है, इसका मतलब इसका ब्लड ग्रुप A होगा. ठीक है, नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड इन दिस पर्टिकुलर केस. यहां पे अगर क्लम्पिंग आ रही है तो कॉमन सेंस आपने क्या ऐड किया एंटी-सीरा B में? आपने ऐड किया है एंटीबॉडी B. Antibody B will identify antigen B. So definitely इसके ब्लड में B एंटीजन था जो आइडेंटिफाई हो गया है यहाँ पे, and that is how we get the blood group B. ठीक है, now let's say for example यहाँ पे ब्लड ग्रुप O आइडेंटिफाई करना है, तो कैसे आइडेंटिफाई करोगे आप? कैसे आइडेंटिफाई करोगे ब्लड ग्रुप में? सेम चीज, आपके पास O एंटी-सीरा नहीं है. ठीक है, क्योंकि O एंटी-सीरा हम आइडेंटिफाई ऑब्टेन ही नहीं कर सकते बिकॉज O ब्लड ग्रुप में जो भी सीरा होगा उसमें कोई भी ब्लड ग्रुप के एंटीजेंस नहीं होंगे, एंटीबॉडीज नहीं होंगे ना बेटा. समझ में आ रहा है? सो माय मिस्टेक. सो अगर O ब्लड ग्रुप है, O ब्लड ग्रुप में हो क्या रहा है? O ब्लड ग्रुप में देयर इज नो एंटीजन बट देयर विल बी बोथ ऑफ द एंटीबॉडीज. Is that right? So there will be both of the antibodies. So in this particular case, अगर ब्लड ग्रुप O है तो इसको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे हम? ब्लड ग्रुप O में कोई एंटीजन है क्या? नहीं है. तो कोई एंटीबॉडी ऐड करने से कुछ फर्क पड़ने वाला है क्या? है ना, कोई एंटीजन ही नहीं है, तो ये एंटी-सीरा किसको आइडेंटिफाई करेंगे? अभी अंडरस्टैंडिंग इट, राइट? सो हियर there will be absolutely both of these particular sample will be untreated. They will just resemble the untreated structure. So here what you observe is clumping. Clumping को हम बोलते हैं agglutination. ठीक है, so O blood group आइडेंटिफाई करोगे तो anti-sera there will be no effect of the adding the anti-sera. अगर AB ब्लड ग्रुप है, इसका मतलब इसके आरबीसी के ऊपर दोनों भी एंटीजेंस प्रेजेंट है, राइट? और टेक्निकली इट इज, हाउ डू यू आइडेंटिफाई इट एज AB? अगर दोनों जगह पे क्लम्पिंग आ रहा है दैट मींस इट इज एन इंडिकेशन कि ये दोनों एंटीबॉडीज ने दोनों एंटीजेंस को आइडेंटिफाई कर लिया सब्सिक्वेंटली, देयरबाय शोइंग क्लम्पिंग इन बोथ द डिशेस. दैट इज व्हाई वी टेक वन, दैट इज व्हाई वी टेक टू, कंपेयर करने के लिए. नहीं तो आप बोलोगे सर इधर ही क्यों रुक नहीं गया, इधर ही रुक जाना चाहिए था, यहाँ पे क्लम्पिंग मिली इधर ही रुक जाना चाहिए था. नहीं ना बेटा, ये करना ही पड़ेगा बिकॉज AB में दोनों जगह पे क्लम्पिंग आएगा, राइट? सो इन केस ऑफ AB ब्लड ग्रुप देयर विल बी क्लम्पिंग व्हिच इज सीन हियर एंड देयर विल बी क्लम्पिंग व्हिच इज सीन हियर. समझा बेटा?
सो ए बी ब्लड ग्रुप में दोनों सैंपल्स में, ए और बी में दोनों में से आपको क्लम्पिंग दिखेगा, ओ में आपको एक में भी क्लम्पिंग नहीं दिखेगा, बी में आपको बी एंटीसीरा ऐड करने के बाद भी क्लम्पिंग दिखेगा, और ए में आपको ए एंटीसीरा ऐड करने के बाद क्लम्पिंग दिखेगा, ठीक है। सो नाउ दीज वेरी कन्वेंशनल मेथड्स, आई टोल्ड यू इधर किधर भी आरएच फैक्टर का रोल नहीं है। अब जो वो यूज करते हैं, सो नाउ व्हाट डू दे वेरी कन्वीनियंटली, एक 150 रुपए का 300 रुपए के ऐसे बॉटल्स आते हैं एंटीबॉडीज का, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज व्हिच इज सिंथेटिकली मेड, ठीक है। अब मॉडर्न मेथड क्या है, मॉडर्न मेथड में वो modern method is so convenient and so significantly useful that it is also able to give you the RH blood group। यहाँ पे RH blood group नहीं मिल रहा था, conventional method है, अब यहाँ पे RH blood group भी मिलेगा, ठीक है। अब वो करते क्या है, there is a simple slide which is however there is a simple slide which is being taken, ठीक है। अब ये स्लाइड को हम बोलेंगे कैविटी स्लाइड। यहाँ पे 3 कैविटी होते हैं, वेरी क्लियर। कैविटी मतलब टेक्निकली ग्लास स्लाइड ही होगा जिसमें छोटा सा डिप्रेशन होगा जस्ट टू अकोमोडेट दी ड्रॉप ऑफ ब्लड, ठीक है। सो अगर तीनों ये है, सिंपल स्लाइड है कांच की, 2 रुपए की मिलती है बेटा, ठीक है। इधर मैंने मार्क कर दिया ए, इधर मैंने मार्क कर दिया बी, इधर मैंने मार्क कर दिया डी, दैट इज फॉर माय कन्वीनियंस, ठीक है। एंड व्हाट डू आई हैव इज I have monoclonal antibodies, that is antibody A, antibody B और antibody D, ठीक है। What are these? These are the monoclonal antibodies. What are blood group antibodies called as? They are called as agglutinin. What are blood group antigens called as? Agglutinogen. समझा, ठीक है। तो आपने क्या कर दिया है, आपके पास ये apparatus है, आपके पास ये तीनों चीजें हैं। इसको मोनोक्लोनल क्यों बोलते हैं मैंने आपको बता दिया, because it is a purified form. Antisera is not purified. It is being taken from the blood of another individual. ठीक है, एक सब्सिक्वेंट दूसरा कोई पेशेंट होगा उसमें से ब्लड एक्सट्रैक्ट करके रियल टाइम ये चीजें बनाई जाती है, और ये कैसे आपको मार्केट में मिलता है। सो दिस इज मच मोर कन्वीनियंट, दैट इज व्हाई अब अगर आप ब्लड ग्रुप निकालने भी जाते हो तो दे टेक 50 रुपीज, बट हार्डली, लेट मी टेल यू, हार्डली इट टेक्स 10 to 20 रुपीज टू फाइंड आउट अ ब्लड ग्रुप, ठीक है। वो आपको 50 रुपया अननेसेसरी लिया जाता है, बिकॉज एक ड्रॉप की कीमत इतनी ज्यादा नहीं होती बेटा, 150, 300, 400 में एक पूरी वायल मिल जाती है। वेरी क्लियर बेटा। सो मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज, ये वायल में क्या होगा, एंटीबॉडी ए होगा विच विल बाइंड टू एंटीजन ए, एंटीबॉडी बी होगा एंड एंटीबॉडी डी होगा। एंटीबॉडी डी विल आइडेंटिफाई द आरएच एंटीजन, ठीक है। तो अब देखो ऐसा ही स्लाइड, ये आपके कन्वीनियंस के हिसाब से यू कैन गिव लेबल देम, ठीक है। सो नाउ व्हाट एंड देन व्हाट यू हैव, देन व्हाट यू डू इज प्रिक एंड यू पुट 1 2 3 टीका लगा देते हो, ठीक है। प्रिक करने के बाद ये तीनों कैविटी पे अपना ब्लड, अपना खून का मार्क छोड़ दोगे, ठीक है। देन व्हाट डू यू हैव टू डू इज, ए एंटीबॉडी है ना, तो ए एंटीबॉडी ए के सेक्शन में डालोगे, बी एंटीबॉडी बी के सेक्शन में डालोगे, डी एंटीबॉडी डी के सेक्शन में डालोगे, ठीक है। अब मेरे को आपको बताना है, अब दिस इज द apparatus, ठीक है, ये apparatus है, एंड लेट्स ट्राई टू आइडेंटिफाई द ब्लड ग्रुप ऑफ द इंडिविजुअल। सो क्या बोला मैंने आपको, ए आपने ए के सेक्शन में डालना है, बी आपने बी के सेक्शन में डालना है, डी आपने डी के सेक्शन में डालना है। नाउ जहां पे क्लम्पिंग होगा उसके हिसाब से विल ट्राई टू आइडेंटिफाई द ब्लड ग्रुप। सो डेफिनेटली जहां पे क्लम्पिंग होगा इसका मतलब उसमें, जहां पे फॉर एग्जांपल यहां पे क्लम्पिंग हुआ तो इसका मतलब उसका ब्लड ग्रुप क्या होना चाहिए बेटा, कि उसका ब्लड ग्रुप होगा ए, बिकॉज़ द ए एंटीबॉडी हैज आइडेंटिफाइड ए एंटीजन्स, ठीक है। व्हाट आर वी लुकिंग फॉर इज द एंटीजन, ठीक है। सो लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड, लेट्स ट्राई एंड टेक अप द एग्जांपल्स। सो इमेजिन करो कि मैं छोटी-छोटी स्लाइड्स बना रहा हूं, ठीक है। 1 2 3 4 5 6, ठीक है, ऐसे बना लिया अंदाजे से 2 3 The principle is the same, only the method is a little more different because here we are also taking up B and we are taking the purified antibodies. That's the only difference.
So I'm not labeling it according to the I'm not labeling it this way because मेरे को और टाइम वेस्ट नहीं करना है। अब मैं यहाँ पे क्लम्पिंग बताऊंगा, ठीक है, और आप मेरे को बताओगे इसका आंसर। अब आप मेरे को वीडियो पे से नहीं बता सकते, मैं सुनने के लिए तो नहीं हूँ, तो जहाँ पे आप बैठे हो वहां पे जोर से चीख कर आंसर बता देना, ठीक है, एंड जस्ट अज्यूम दैट आई एम लिसनिंग टू यू। कूल, सो लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड, लेट्स ट्राई टू आइडेंटिफाई दिस। अगर बेटा यहाँ पे क्लम्पिंग दिख गई, सिर्फ यहाँ पे क्लम्पिंग दिखी है, तो व्हाट शुड बी द ब्लड ग्रुप? व्हाट शुड बी द ब्लड ग्रुप? सिर्फ यहाँ पे क्लम्पिंग दिखी है ना? यहाँ पे अगेन हियर आई एम अगेन जो भी खाली है ये अज्यूम कर लो बेटा कि वो होल ब्लड है, ठीक है। अगर खाली है इसका मतलब वो होल ब्लड है, ठीक है। क्लम्पिंग मैं आपको ऐसे दिखाऊंगा। सो अगर यहाँ पे क्लम्पिंग दिख रही है इसका मतलब व्हाट हैज द डी एंटीबॉडी आइडेंटिफाइड? इट हैज आइडेंटिफाइड डी एंटीजन, ठीक है। बट ए और बी एंटीबॉडी ने कुछ भी आइडेंटिफाई नहीं किया, ठीक है। सो दैट मींस उसके पास ना ही ए एंटीजन है ना ही बी एंटीजन है, बट ही हैज डी एंटीजन। दैट मींस इसका ब्लड ग्रुप क्या होना चाहिए बेटा? ब्लड ग्रुप होना चाहिए ओ पॉजिटिव। समझा? ठीक है। सिमिलरली 1 2 ये दो जगह पे क्लम्पिंग दिख रही है, तो इसका ब्लड ग्रुप क्या होना चाहिए? दोनों जगह पे क्लम्पिंग दिखा, इसका मतलब यहाँ पे दी ए एंटीबॉडी हैज आइडेंटिफाइड ए एंटीजन, मतलब उसके ब्लड में ए एंटीजन था, और बी एंटीबॉडी हैज आइडेंटिफाइड बी एंटीजन, मतलब उसके ब्लड में बी एंटीजन भी था। Similarly, D antibody has not identified anything. That means his body does not contain, his blood does not contain D antigen. So what should be the blood group of this individual? The individual's blood group is AB negative. समझी क्यों? ठीक है, तो इधर देखो, क्या होना चाहिए ब्लड ग्रुप? सिर्फ बी पे दिख रहा है, बी पे क्लम्पिंग दिख रहा है। प्रिंसिपल याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ठीक है। बी पे क्लम्पिंग दिख रहा है, इसका मतलब उसके ब्लड में बी एंटीजन को आइडेंटिफाई कर लिया है, बाकी कहीं पे भी देयर इज नो क्लम्पिंग। सो दिस इज बी नेगेटिव, दिस इज बी नेगेटिव, वन ऑफ द रेयर ब्लड ग्रुप अकॉर्डिंग टू द ब्लड बैंक्स। रिक्वायरमेंट बी नेगेटिव की बहुत ज्यादा है, और जेनेटिक बेसिस की अगर मैं बात करूं, सो बी एंटीबॉडीज आर प्रीटी लेस, माय मिस्टेक, B negative blood group is pretty less in the population, इसलिए उसको बहुत वैल्यू है। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब मैं डायरेक्टली क्लम्पिंग अपने हिसाब से कर लूंगा, इसके तीनों का आंसर अपन दे देंगे। एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, ठीक है, और इसमें कुछ भी क्लम्पिंग नहीं दिख रहा। इसका मतलब यहाँ पे ए एंटीजन आइडेंटिफाई हो गया, यहाँ पे बी, यहाँ पे डी एंटीजन आइडेंटिफाई हो गया। दैट मींस द ब्लड ग्रुप इज ए पॉजिटिव, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे 1 2 3 तीनों आइडेंटिफाई हो गए, मतलब ए एंटीजन भी आइडेंटिफाई हो गया, बी भी हो गया, डी भी हो गया। दैट मींस इसका ब्लड ग्रुप होगा ए बी पॉजिटिव, ठीक है। और यहाँ पे कुछ भी नहीं आ रहा, ऑल एवरीवेयर यू विल फाइंड होल ब्लड ओनली। सो ए एंटीबॉडी का भी कोई इफेक्ट नहीं हुआ, बी एंटीबॉडी का भी कोई इफेक्ट नहीं हुआ, डी एंटीबॉडी का भी कोई इफेक्ट नहीं हुआ। दैट मींस देयर आर नो एंटीजेंस प्रेजेंट ऑन द आरबीसी। सो इसका ब्लड ग्रुप क्या होगा बेटा? ओ नेगेटिव, ठीक है। सो दिस इज प्रीटी सिंपल ऑन दैट पर्टिकुलर पॉइंट। ये इसके बेसिस पे आपको क्वेश्चंस क्या-क्या आएंगे। फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज व्हाट इज एन एंटीसीरा, ये इंपॉर्टेंट फर्स्ट क्वेश्चन है। दूसरा आपको ये सिनेरियो एक्सप्लेन करेंगे कि if one of the individual, one patient went for his blood group identification, and while after adding anti-sera B, his blood group showed clumping, ठीक है, on this slide. So what should be the blood group of that individual? ठीक है। सो आंसर होगा आपका एंटी-सीरा बी ऐड किया, इसका मतलब आंसर होगा आपका एंटीबॉडी बी है उसमें, और एंटीबॉडी बी किसको आइडेंटिफाई करेगा? एंटीजन बी को आइडेंटिफाई करेगा, और एंटीजन बी कहां पे है? उस पेशेंट के ब्लड में प्रेजेंट है, ठीक है। सो दैट इज वन प्रिंसिपल यू नीड टू अंडरस्टैंड। या फिर यही सिनेरियो को देकर वो आपको बोलेंगे लेट्स से फॉर एग्जांपल अ कपल गोस फॉर ब्लड ग्रुप आइडेंटिफिकेशन, and on adding anti-sera A into female patient's blood sample, there was clumping seen,
Similarly, on adding anti-sera A and B in the male showed clumping. ठीक है? What would be the possibility of having a O blood group child? ठीक है? Of O blood group child. तो आपको यहाँ पे दो चीजों को आंसर करना है. First you will have to identify the blood group, and then you will have to solve the genetics based on that, and then you can answer that question. Very clearly understood, beta? So that is with respect to identification of the blood group. The next section which we have to talk about is a little more confusing. ठीक है, और बट इजी है. बहुत कंफ्यूजिंग लैंग्वेज में एनसीईआरटी में लिखा हुआ है. ठीक है, अब ये टॉपिक को यहाँ पे समझ लो, एंड आई विल टेल यू वेयर टू रीड, एंड प्लीज रीड एंड गेट रीड ऑफ दैट कंफ्यूजन नाउ इटसेल्फ आफ्टर द मोमेंट यू सी दैट दिस पर्टिकुलर वीडियो. डोंट प्रोक्रेस्टिनेट इट, डोंट डिले इट. सो आपको जैसे ही आपने लेक्चर सुना, जैसे आपने कॉन्सेप्ट समझा है, तो एक बार एनसीईआरटी पढ़ लो, तो आपका जो डाउट्स है दैट विल बी वेरी इजीली क्लियरिफाइड. ठीक है, तो आप करूं છું હવે. The next factor which we have to talk about is something called as the RH factor. ठीक है, RH factor. Now here RH stands for rhesus factor. ठीक है, so RH factor was first identified in a rhesus monkey. तो जब लोगों को लगता था, जब कार्ल लैंडस्टीनर को लगता था कि देयर इज ओनली ए बी एंड ए बी ब्लड ग्रुप एंड ओ ब्लड ग्रुप. ठीक है, बट व्हेन दे वर डूइंग अ लॉट ऑफ एक्सपेरिमेंट्स, कुछ तो उनको ऐसा प्रॉब्लम आता था, कहीं तो सीरम रिएक्शन होता था, एंड दे वर एब्सोल्युटली क्लूलेस टू फाइंड आउट कि क्या है एग्जैक्टली, व्हाई इज दिस अननेसेसरी क्लम्पिंग टेकिंग प्लेस. ठीक है, एंड व्हेन दे वर वर्किंग ऑन दीज मंकीज, तो वहां पे ह्यूमंस को तो नहीं लेंगे हम, है ना, तो हम बहुत फ्री में मिलने वाला ब्लड कहां से है, इधर हम एनिमल्स को टारगेट करेंगे. सो rhesus monkey इज वन ऑफ द फेमस एक्सपेरिमेंटल मॉडल. अब जो भी ये कोविड के ट्रायल्स हो रहे हैं ना, अब मे बी कोविड के ट्रायल्स ने बहुत सारी फेजेस को स्किप कर लिया है, क्लिनिकल ट्रायल्स. टेक्निकली व्हेन यू टॉक अबाउट एनी टाइप ऑफ ड्रग, वैक्सीन अभी बिकॉज इट वाज द नीड ऑफ द टाइम, तो वैक्सीन उन लोग ने within one year they were successfully able to get the vaccine. But when you talk about an actual drug which is being manufactured and marketed to the local public, ठीक है, if that drug has to come to the market for the availability to the consumers, so it has to pass series of trials. ठीक है, अब सीरीज ऑफ ट्रायल्स में वो इन विट्रो ट्रायल्स करेंगे, मतलब सेल्स पे एक्ट करवाएंगे, सेल्स के बाद वो टिश्यूज पे एक्ट करवाएंगे, उसके बाद दे विल डू इन वीवो स्टडीज, मतलब दे विल टारगेट स्मॉल ऑर्गेनिजम्स, दे विल सी द इफेक्ट ऑफ दिस ड्रग इन अ रैट, देन दे विल गो फॉर रैबिट, गिनी पिग, उसके बाद वो मंकीज पे जाएंगे. मंकीज जो सिमिलर है, ह्यूमंस से बहुत ज्यादा सिमिलैरिटी शो करता है, दैट इज rhesus monkey, one of the favorite monkey. We do not go for some other brands of monkey. We do not go for orangutan. We do not go for gorilla. फॉरेस्ट वाले जेल में डाल देंगे अननेसेसरी. ठीक है, सो वी वेरी इजीली ब्रेड ऑर्गेनिजम्स जो है, थोड़ा सा सटल जो है, दैट इज rhesus monkey. So we have taken that particular as the experimental model. Okay, so RH here stands for rhesus factor, and what he थोड़ा सा डिफरेंट है. RH factor जो है ना, it is very similar to your blood group antigens, but then it is a little different. Very similar but a little different. And what is that difference? We will try to understand. ठीक है, अब किसने
आइडेंटिफाई या डिस्कवर किसने किया था? इट वाज डिस्कवर्ड बाय अगेन, इट वाज डिस्कवर्ड बाय कार्ल लैंडस्टीनर। बट इसके बाद इसके साथ जो देयर वाज हिज स्टूडेंट, ठीक है, कार्ल लैंडस्टीनर एंड वीनर, ठीक है, ये दो साथ में दो इंडिविजुअल्स बोलो या गाइड और स्टूडेंट बोलो, तो दे वर एबल टू आइडेंटिफाई दिस पर्टिकुलर फैक्टर, ठीक है। RH factor is also referred to as the D antigen. It is referred to as the D antigen, ठीक है। And according to the population, I told you this, अगर D antigen present है तो हम RH positive बोलते हैं, D antigen absent है तो RH negative बोलते हैं, ठीक है। So according to the population, according to Indian population, let's say दुनिया का जानकर क्या करना है ना? So according to Indian population, approximately 85% people are RH positive and only 15% people are RH negative. Is that very clear on that particular point? ठीक है। So you can understand कि RH factor जो है, it is an undoubted genetic क्वालिटी ऑफ एन इंडिविजुअल, बट जरूरी नहीं है, ठीक है, कि ये हो या ये, अगर ऐसा भी हो सकता है, नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड, ऐसा भी हो सकता है दैट लेट्स से फॉर एग्जांपल इफ आउट ऑफ टू पेरेंट्स, ठीक है, इफ बोथ ऑफ देम आर RH पॉजिटिव, डेफिनेटली द चाइल्ड विल बी RH पॉजिटिव ओनली। बट अगर ऐसा कंडीशन है कि वन ऑफ द पेरेंट इज RH पॉजिटिव एंड द वन इज RH नेगेटिव, तो चांसेस दोनों हो सकते हैं, बच्चे में RH पॉजिटिव भी होगा, RH नेगेटिव भी हो सकता है इन द नेक्स्ट चाइल्ड, एक ही बच्चे में दोनों नहीं होते। ये जिसको भी डाउट आया होगा तभी मैं बता रहा हूं, समझी क्या? तो ये बेसिक चीज है, आपको याद रखना है। नाउ व्हेन यू टॉक अबाउट द RH एंटीजन, RH एंटीजन अगर प्रेजेंट है तो काम खत्म, है ना, मतलब RH पॉजिटिव बोल देंगे। बट RH एंटीबॉडीज आर नॉट प्रेजेंट, रेडीमेड एंटीबॉडीज आर नॉट प्रेजेंट, ठीक है, मतलब जो नॉर्मल आपके ब्लड ग्रुप के लिए था, एंटीबॉडी रेडीमेड प्रेजेंट थे, मतलब नाउ आई एम टॉकिंग टू यू एंड इफ आई गो एंड चेक द ब्लड ग्रुप, अगर अभी भी मैंने होल ब्लड सैंपल लिया, सो आई विल बी एबल टू फाइंड आउट दी, अगर मेरा ब्लड ग्रुप A पॉजिटिव है, सो मेरे ब्लड में, मेरे प्लाज्मा में देयर विल बी एंटीबॉडी, बट देयर विल नॉट बी D एंटीबॉडीज और अगेंस्ट D एंटीजन। अगर मेरा A नेगेटिव भी होता, ब्लड अगर A नेगेटिव भी होता, तो मेरे प्लाज्मा में B एंटीबॉडी होगा, बट देयर विल नॉट बी B एंटीबॉडीज, क्योंकि देयर इज नो रेडीमेड एंटीबॉडीज नहीं होते हैं हमारे पास D के अगेंस्ट, ठीक है। बट बॉडी उसको तैयार करती है एज द प्राइमरी रिस्पॉन्स। बहुत अच्छे से समझ लेना बेटा, बिकॉज इसी के बेसिस पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पढ़ने वाला है जो एग्जाम में जनरली पूछा जाता है, ठीक है। एंड इट इज वेरी 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 सिंपल। आई डोंट नो व्हाई पीपल टेक इट ओवर दैट पर्टिकुलर टोल कि अरे बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, हमेशा क्वेश्चन गलत करके आएंगे। मैं अभी भी बता रहा हूँ, लेक्चर बहुत अच्छे से समझ लेना, ठीक है। नहीं अगर नहीं समझ रहा है तो क्लासरूम पे डाउट पोस्ट कर दो, तो आई विल एक्सप्लेन इट टू यू, बट आई विल रियली नॉट अप्रिशिएट इफ पीपल गो रॉन्ग इन दिस कॉन्सेप्ट, ठीक है। चलो, तो मैंने आपको क्या बताया कि RH एंटीजन के अगेंस्ट रेडीमेड एंटीबॉडी नहीं होते, बट बॉडी प्रिपेयर करती है, ठीक है। तो दैट मींस अगर रेडीमेड एंटीबॉडी नहीं है, इमीडिएट जान बचाना पॉसिबल है, ठीक है। इमेजिन करो बेटा कि एक इंसान है जिसका ब्लड ग्रुप B, लेट्स से फॉर एग्जांपल B नेगेटिव है, ठीक है, और ये कौन है मेरा, ये है मेरा डोनर, सॉरी ये है मेरा रिसिपिएंट, ठीक है। और मेरे पास एक डोनर है, आई डिड नॉट गेट B नेगेटिव ब्लड बिकॉज आई टोल्ड यू B नेगेटिव इज वेरी रेयर, सो आई डिड नॉट गेट B negative blood group, and this patient's condition is so critical that this patient is about to कभी भी टैब बोल देगा, है ना। तो बोलने का मतलब ये है कि इसकी जान बचाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। So for that he requires a surgery, and for that surgery he requires blood. But for now particular, for some reason there is no blood bank में B negative blood खत्म हो गया, बट अभी मोमेंटरली जान बचाना इंपॉर्टेंट है ना। सो नाउ एंड देयर वाज अ डोनर हु वाज अवेलेबल एंड बट हिज ब्लड ग्रुप वाज B पॉजिटिव, ठीक है।
कैन द डॉक्टर गिव बी पॉजिटिव टू बी नेगेटिव? At this point, technically he should not be giving because those are the norms for blood transfusion. ठीक है, सब देखो ये मेडिकल फील्ड जो है ना, इसमें बहुत सारे नॉर्म्स हमको पालने पड़ते हैं. अदरवाइज इफ यू गो रॉन्ग इन स्मॉल प्रोसीजर आल्सो, नो, यू विल बी एब्सोल्युटली फाइन एंड अल्टीमेटली सब बात जो है ना आपके लाइसेंस पे बन जाती है. ठीक है, सो टेक्निकली ही शुड नॉट बी ट्रांसफ्यूजिंग बी पॉजिटिव टू बी नेगेटिव. बट अब रिक्वायरमेंट क्या है, नीड ऑफ द टाइम क्या है, इसकी जान बचानी है. ठीक है, अब जान बचाएंगे तो बाद में देखा जाएगा. इफ द पर्सन इज अलाइव देन वी कैन try and tackle the problem which we have created, because we are creating a problem, no, right, by adding B positive. ठीक है, अब मैंने रेसिपिएंट मेरे को मिल गया B पॉजिटिव वाला. अब B पॉजिटिव में बाकी सब सिमिलर है, बट क्या डिफरेंट है, B पॉजिटिव के पास D एंटीजन होगा, इसके पास D एंटीजन नहीं है. ठीक है, बट आई टोल्ड यू इसके ब्लड में देयर विल बी नो रेडीमेड एंटीबॉडीज, मतलब इमीडिएटली कुछ नहीं होने वाला है. तो मैंने क्या कर दिया, आई हैव ट्रांसफ्यूज्ड दिस टू दिस. ठीक है, अब बी तो ब्लड ग्रुप मिल गया, बेचारे की जान तो बच गई. ठीक है, पर दिस डी एंटीजेंस जो है ना बेटा, ये डी एंटीजेंस जो भी है, ये डी एंटीजेंस इसके ब्लड में चले जाएंगे. ठीक है, नाउ दीस डी एंटीजेंस will be identified as foreign by the recipient, because recipient ने कभी डी एंटीजन को देखा ही नहीं है, उसके ब्लड में कभी देखा, मतलब आप समझ रहे हो ना, मैंने इसे देखा इसका मतलब बॉडी आइडेंटिफाई कर रही है. Don't take me literally, please, for heaven's sake. So I told you that if a person जो B नेगेटिव वाला पेशेंट है, उसने कभी भी डी एंटीजन को आइडेंटिफाई किया ही नहीं है ना, सो उसके इम्यून सिस्टम के लिए दिस डी एंटीजन विल बी अ फॉरेन मटेरियल. सो विदिन 7 days द डोनर, अब ब्लड तो जा चुका बेटा. ठीक है, सर्जरी हो गई, इंसान ऑलमोस्ट बेड पे है, ठीक है, मतलब जान बच गई है. ठीक है, क्रिटिकल कंडीशन से बाहर आ चुका है. बट वी शुड नॉट फॉरगेट दिस पर्टिकुलर फैक्ट दैट डी एंटीजन तो उसकी बॉडी में है. कल जाकर उसको कुछ नहीं तो एलर्जी के रिएक्शन हो जाएंगे, कुछ नहीं तो भी उसके सारे डी एंटीजेंस जो है, जो तब आइडेंटिफाई नहीं होते, वो उसको आइडेंटिफाई हो जाएगा. द पर्सन विल शो एलर्जिक सिम्टम्स, द पर्सन माइट शो क्लम्पिंग व्हिच इज बीइंग सीन. ठीक है, तो उसको हम ट्रीट कर सकते हैं. बट तब तक क्या है बेटा, द रेसिपिएंट विल टेक एटलीस्ट 5 to 7 days टू प्रोड्यूस एंटीबॉडीज अगेंस्ट देम. ठीक है, तब तक पेशेंट की जान बच गई. ठीक है, एंड दिस कैन आल्सो बी टैकल्ड. विल ट्राई टू अंडरस्टैंड, विल ट्राई टू ट्रीट दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम. हम ये कंडीशन को ट्रीट कर सकते हैं. आई टोल्ड यू दिस कंडीशन इज ओनली एक्सेप्शनल एंड दैट कंडीशन इज कॉल्ड एज डायर कॉन्सिक्वेंसेस. ठीक है, अदरवाइज ये कंडीशन अपने यूज नहीं किया, नहीं तो ये पेशेंट मर जाएगा, द पर्सन विल डाई. To prevent the death of the individual, if there is no alternative, if there is no choice, we can give B positive या any positive RH positive blood group to an RH negative blood group, provided the blood groups are the same. भलता ही B पॉजिटिव और A पॉजिटिव या A नेगेटिव को नहीं दे सकते, है ना, उसके जान पे रहम करो थोड़ा. ठीक है, इतना आपको समझ गया, इतना ठीक है. सो दिस इज ओनली इन द केस ऑफ डायर कॉन्सिक्वेंसेस. नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड द डायर कॉन्सिक्वेंसेस अ लिटिल बिट. ठीक है, एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है. अब क्या होगा देखो, ट्राई टू अंडरस्टैंड. ये डी एंटीजन जो है, ये डी एंटीजन यहां पे जाकर आइडेंटिफाई हो रहा है. ठीक है, और इसकी बॉडी जो है, इसकी बॉडी प्रोड्यूस करेगी एंटीबॉडीज, एंड विद इन 7 days वो रिएक्शन खत्म हो जाएगा. ठीक है, विद इन 7 days टेक्निकली वो जो 300 ml ब्लड या 1 लीटर ब्लड फॉर दैट पर्टिकुलर मैटर, उसके सारे डी एंटीजेंस डिस्ट्रॉय हो जाएंगे. बट आरबीसी को इतना ज्यादा डैमेज नहीं होगा, द पर्सन विल नॉट सफर फ्रॉम ग्रेव डैमेज. बट दिस कंडीशन नेचुरली अकर्स इन अ मदर एंड अ चाइल्ड. ठीक है, आप इमेजिन करो कि if a mother is RH negative, imagine this particular scenario. If a mother is RH negative, I told you ब्लड ग्रुप कौन सा है वो मैटर नहीं कर रहा, बट RH पॉजिटिव RH नेगेटिव वो मैटर कर रहा है यहाँ पे. ठीक है, अगर मदर RH नेगेटिव है डेफिनेटली एंड द चाइल्ड इज RH पॉजिटिव, मदर इज RH नेगेटिव, चाइल्ड इज RH पॉजिटिव, तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि चाइल्ड इज बेयरिंग अ डी एंटीजन ऑन हिज ब्लड आरबीसी?
ठीक है। और मदर ने अगर इसको फॉरेन आइडेंटिफाई कर दिया, बिकॉज क्लोज कांटेक्ट में है, इफ द मदर आइडेंटिफाइज दैट डी एंटीजन एज फॉरेन, मदर की इम्यून सिस्टम एंटीबॉडी बनाएगी और ये एंटीबॉडी पास होगा टू द प्लेसेंटा। वी टॉक अबाउट दैट एंड दैट माइट लीड टू वेरी सीरियस कंडीशन एंड दैट कंडीशन इज कॉल्ड एज एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटालिस। So based on this RH cross transfusion, we have a disease which has to be studied, that is erythroblastosis fetalis. Also it is called as rhesus baby syndrome. Also it is called as hemolytic disease of newborn. Let's try to understand these three names. ठीक है, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटालिस, उसी को बोलते हैं rhesus baby syndrome, उसी को बोलते हैं hemolytic disease of newborn. So we will later understand the meanings of these terms. First we'll understand the scenario कि disease में हो क्या रहा है, ठीक है। अब इमेजिन करो कि एक लेडी है, एक मदर है जो RH पॉजिटिव, माय मिस्टेक, जो एक मदर है and the mother is RH negative, ठीक है, and this mother gets pregnant, मतलब मदर है, मदर इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि वो प्रेग्नेंट है ना। If this particular lady, let's say for example ये प्लेसेंटा है, ठीक है, if this lady is bearing a child, कितना मस्त बनाया ना बच्चा, is bearing a child that is RH positive, ठीक है, मदर RH नेगेटिव, चाइल्ड RH पॉजिटिव। तो जब डिलीवरी होगा, दैट इज दिस इज द फर्स्ट टाइम, फर्स्ट डिलीवरी होगा, पहला बच्चा तो पहला ही डिलीवरी होगा। आई डोंट नो व्हाई आई एम राइटिंग दिस, बट अंडरस्टैंड, पहला डिलीवरी जब भी होगा बेटा तो एवरीथिंग विल बी नॉर्मल। बच्चा देखो क्या होता है, होता क्या है, अंडरस्टैंड, जो पार्चुरेशन है, दैट इज जो बच्चे की डिलीवरी है, दैट इज अ टीडियस प्रोसेस, अप्रोक्सीमेटली इट टेक्स 20 to 16 और मोर देन 16 मिनट्स, ठीक है। तो व्हेन देयर इज दिस पर्टिकुलर प्रोसेस हैपनिंग नेचुरली, सो इट माइट हैपन दैट द ब्लड ऑफ द फीटस एंड द ब्लड ऑफ द मदर, मतलब ब्लड, फीटल ब्लड एंड द मैटरनल ब्लड कैन मिक्स, ठीक है। ड्यूरिंग द डिलीवरी ये कंडीशन हो सकती है, ड्यूरिंग द डिलीवरी ये कंडीशन हो सकती है कि ब्लड का कोई कैपिलरी टूट गया या फट गया है, तो बेबी का जो ब्लड है दैट एंटर्स इनटू द मदर्स ब्लड, ठीक है। सो बेबी का आई टोल्ड यू कि रेडीमेड डी एंटीजन, रेडीमेड डी एंटीबॉडी नहीं है हमारे पास। सो व्हेन द चाइल्ड इज बीइंग डिलीवर्ड, ऐसा हो सकता है कि चाइल्ड का ब्लड गेट्स इनटू द ब्लड ऑफ द मदर एंड द मदर विल आइडेंटिफाई ऑल द डी एंटीजन्स एज फॉरेन, और जब मदर एंटीबॉडी प्रोड्यूस करेगी, डी एंटीबॉडी प्रोड्यूस करेगी, तब तक बच्चे की डिलीवरी हो चुकी एंड द चाइल्ड इज एब्सोल्युटली सेफ। सो द मदर ऑलरेडी हैज एनकाउंटर्ड, फर्स्ट टाइम शी हैज एनकाउंटर्ड अ डी एंटीजन, ठीक है। पर उसके पास मेमोरी सेल्स है, उसके पास मेमोरी उसके पास मेमोरी डी सेल्स है ना। तो अब ये फर्स्ट डिलीवरी जो है दैट इज एब्सोल्युटली प्रीटी नॉर्मल। नाउ अंडरस्टैंड द सेम सिनेरियो इज प्रेजेंट इन दी, ये सेम सिनेरियो हो गया है सेम मदर के साथ, ठीक है, बट अभी डिफरेंट क्या है, सिर्फ बच्चा दूसरा है। थोड़ी सी मदर पतली हो गई है तो सर्कल थोड़ा सा छोटा हो गया है, ठीक है। आई नो, प्लीज किल मी फॉर दीज बैड जोक्स व्हिच आई एम क्रैकिंग, ठीक है, बट आई कांट रियली हेल्प इट। मेरे को कहीं ना कहीं तो मुंह चलाना पड़ता है, तो और फिर मैं कुछ भी बोल देता हूँ क्योंकि मेरे पास बोलने के लिए कुछ बचा ही नहीं है यार। ओके, कम बैक। RH नेगेटिव, ये पहला डिलीवरी नॉर्मल था, खुशियां मनाओ, पेड़े बांटो, ठीक है। अब दूसरी डिलीवरी की बात करते हैं। दूसरी डिलीवरी में कॉम्प्लिकेशंस आने के चांसेस है। नाउ व्हाट आर दोस कॉम्प्लिकेशंस? हाउ ग्रेव आर दोस कॉम्प्लिकेशंस? आर दे ओनली
सस्ते में काम चलाओ टाइप के, सस्ते में निपट जाने वाला कॉम्प्लिकेशन है, या बच्चे की जान पर बनाएगी, या मदर की जान पर बनाएगी, लेट्स ट्राई एंड आइडेंटिफाई दैट. ठीक है, सो बट द कंडीशन इज प्रीटी सीरियस हियर. नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द सीरियस कंडीशन. ठीक है, अब दूसरे टाइम क्या हुआ, दूसरे टाइम भी मदर ने दूसरे टाइम भी इसके भाग फूटे हैं. तो मदर अगेन शी कंसीव्स विद RH. अब ये बच्चा भी छोटा है, अभी बच्चा डिलीवरी के लिए तैयार था, ये भी बच्चा डिलीवरी के लिए तैयार नहीं है, अभी भी वूम में है, राइट. सो ट्राई टू अंडरस्टैंड हियर, द चाइल्ड इज अगेन RH पॉजिटिव एंड हियर द मदर इज RH नेगेटिव. I told you that when the RH negative after the first delivery, after the first scenario, if the same mother is delivering the same type of child, ठीक है, in that particular condition it might happen the mother's immune system has already identified D antigen. ठीक है, और D antigen क्या भलता सबके लिए अलग अलग नहीं होता. D antigen is same for all the individuals, right? So the mother has already identified D antigen in the primary response, but when the primary response was elicited, till that time the delivery already was completed. ठीक है, but when you talk about the second delivery, अब बच्चा जब भी ग्रो भी हो रहा है बेटा, तो बच्चे की जो डी एंटीजन है ये ऑलरेडी मदर आइडेंटिफाई कर चुकी है, बिकॉज मदर की मेमोरी सिस्टम, मदर की जो B memory cells है, they are already active. So the secondary response, I have also told you this. So secondary response is pretty faster. ठीक है, it is pretty faster and ऐसा हो सकता है कि हमने एक और चीज बात किया था that there are few antigens which there are few antibodies, my mistake, there are few antibodies which can easily cross the placenta and that is IgG except for IgG2. ठीक है, तो ऐसा हो सकता है बेटा कि ये मदर ने इसको ऑलरेडी आइडेंटिफाई कर लिया, बिकॉज़ कभी भी ऐसा कंडीशन होता है फीटल एंड मैटरनल ब्लड डोंट लिटरली मिक्स बट एंटीबॉडीज माइट चेंज. ठीक है, और एंटीबॉडीज माइट बी आइडेंटिफाइड बाय द मदर. अब मदर की सेकेंडरी रिस्पांस इतनी स्ट्रांग है कि अगर इस कंडीशन को ट्रीट पहले डिलीवरी के बाद ही ट्रीट नहीं किया ना, सो व्हाट विल हैपन, ऑल द डी एंटीबॉडीज इन द फॉर्म ऑफ IgG विल पास थ्रू द प्लेसेंटा. ठीक है, और पास होने के बाद ये बच्चे के जितने भी RBCs है कंटेनिंग D antigens, all of those RBCs will be destroyed and the child will absolutely die. इसीलिए the first concept that is erythroblastosis fetalis, मतलब जो बच्चा ग्रो हो रहा है उसमें तो मैच्योर RBCs नहीं होंगे, है ना, मैच्योर RBCs अभी भी डेवलपिंग स्टेज में है. सो बहुत सारा एरिथ्रोब्लास्ट सेल्स होंगे. सो दीज एरिथ्रोब्लास्ट सेल्स आल्सो रिप्रेजेंट्स दी और एग्जिबिट्स दी डी एंटीजेंस. ठीक है, तो क्या हो गया, बिकॉज ऑफ दिस कंडीशन, बिकॉज ऑफ द अनट्रीटेड कंडीशन, और कंडीशन क्या है, RH नेगेटिव मदर बेयरिंग RH पॉजिटिव चाइल्ड, दैट इज द कंडीशन. ठीक है, नाउ बिकॉज ऑफ दैट कंडीशन ऐसा हो सकता है कि एंटीबॉडीज माइट क्रॉस द प्लेसेंटा. ठीक है, एंड इट माइट डैमेज और इट माइट कॉज अग्लूटिनेशन और इट माइट कॉज एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन इन द फीटस. ठीक है, तो इसीलिए मैं उसको बोलूंगा एरिथ्रोब्लास्टोसिस, मतलब इसके जो एरिथ्रोब्लास्ट सेल्स थे, बच्चे के एरिथ्रोब्लास्ट सेल्स थे, उनकी हो गई टॉसिस. एरिथ्रोब्लास्टोसिस, एरिथ्रोब्लास्ट का टॉसिस रेफर्स टू ब्रेकडाउन. ठीक है, नाउ ब्रेकडाउन ऑफ एरिथ्रोब्लास्ट मतलब टेक्निकली डिस्ट्रक्शन ऑफ द एरिथ्रोब्लास्ट लीड्स टू फीटालिस. फीटालिस का मतलब डेथ ऑफ द फीटस, मतलब इंटरनली देयर माइट बी मिसकैरेज, इंटरनली देयर माइट बी अबॉर्शन और इंटरनली देयर माइट बी भ्रूण हत्या. ठीक है, तो बोलने का मतलब ये है, this terminology is explaining that the death of the child might be a miscarriage. Miscarriage मतलब ऑलरेडी मरा हुआ बच्चा पैदा हो रहा है. ठीक है, और दूसरा जो कॉन्सेप्ट है दैट इज कॉल्ड स्टिल बर्थ. स्टिल बर्थ में बच्चा, जब हम डिलीवरी के पहले हम चेक कर रहे थे सोनोग्राफी में, तब बच्चा वाज एब्सोल्युटली नॉर्मल, इट वाज शोइंग ऑल टाइप ऑफ मूवमेंट्स, है ना, इट वाज शोइंग ऑल टाइप ऑफ मूवमेंट्स. चलो पहला स्टेप हो गया हमारा. बट जब मैं क्या बोल रहा था मैं भूल गया. ठीक है,
during this that miscarriage I told you बच्चा womb में ही मर गया, but the other thing is stillbirth. The child was absolutely normal, but during the delivery, during that particular process कि बच्चा डिलीवर होते होते मर गया. जो आपने इसमें देखा ना, वो 3 इडियट्स का जो कॉन्सेप्ट, 3 इडियट्स में जो बच्चा डिलीवरी होता है, तो एब्सोल्युटली चाइल्ड इज जस्ट बोर्न लाइक अ वेजिटेबल, है ना. वो तो कुछ भी कॉन्सेप्ट बताया कि ऑल इज वेल से बच्चे के पैर बच्चा पैर मारने लगता है. दैट इज अ डिफरेंट कॉन्सेप्ट. लेट्स नॉट टॉक अबाउट दैट. बट दैट चाइल्ड व्हिच वाज बोर्न, इट वाज अ स्टिल बर्थ. ठीक है. तो पहला कंडीशन इज एक्सप्लेनिंग यू द मिसकैरेज. The other rhesus baby syndrome मेरे को एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं, because it is called